ناظرین السلام علیکم. صفا آن لائن کے خاص پروگرام حالات حاضرہ میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں ملوث سلطان. آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ انتہائی اہم موضوع ہے. ہر کچھ دنوں بعد مسلم میڈیا کا ایک ایشو اٹھتا ہے. چند دنوں تک یہ موضوع گرم رہتا ہے اور پھر ایسا غائب ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا یہ موضوع کہاں ہے. اگر ہم گزشتہ تاریخ کے حوالے سے بات کریں تو گزشتہ کی 2-3 دہائیوں میں کئی بار یہ موضوع اٹھا، گرم ہوا اور پھر ختم ہو گیا. سوال یہ ہے کہ مسلم میڈیا اگر اتنا ضروری ہے تو آج تک اس سلسلے میں کوئی مناسب کوشش ہمیں نظر کیوں نہیں آتی. اسی طرح یہ سوال بھی انتہائی اہم ہے کہ جب بھی مسلمانوں کی طرف سے میڈیا کی بات ہوتی ہے تو 2 باتیں خاص طور پہ ذکر کی جاتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ اگر مسلم میڈیا ہو جائے تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. نمبر 2 یہ کہ مسلم میڈیا، یعنی جب بھی میڈیا کی بات کرتے ہیں تو مسلم میڈیا، مسلم ٹیگ لگانا ضروری سمجھتے ہیں. آج ہم انہی 2 موضوعات پہ بات کریں گے کہ کیا میڈیا اگر اپنا ہو جائے تو کیا ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، یا ایک پارٹ ہے ہماری اس زندگی کا، ہمارے مسائل کا، نہ کہ تمام مسائل کا حل. دوسرا یہ کہ اس ٹیگ لگانے سے فائدہ زیادہ ہے یا نقصان زیادہ ہے. اور تیسری بات اور وہ یہ کہ اگر ہم میڈیا چاہتے ہیں تو روٹ وے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. انہی 3 موضوعات پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں مولانا مصطفیٰ ندوی مدنی صاحب. مولانا آپ کا خیر مقدم ہے. ابھی جو ایشو گزشتہ 2-3 ہفتوں سے چل رہا ہے اور اس پہ باضابطہ کئی ڈیبیٹس بھی ہوئے ہوں گے، مسلم میڈیا، مسلمانوں کا اپنا میڈیا ہونا چاہیے. واقعتاً میڈیا کی بڑی ضرورت ہے، بڑی اہمیت ہے، وہ اپنی جگہ پہ. لیکن جب بھی ہمارے بڑوں کی طرف سے بات آتی ہے تو مسلم میڈیا کوئی خاص انداز میں اس کی ضرورت کو خاص انداز میں پیش کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہم آپ کا ریئیکشن جاننا چاہیں گے کہ یہ باتیں آتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں، تو اگر یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے تو ختم کیوں ہو جاتی، اور کیا ایسا لگتا ہے کہ ہمارے قائدین میڈیا کے لیے سنجیدہ ہیں یا یہ ایک وقتی چیز ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ میڈیا اس کی ضرورت کا احساس بہت شدید ہوتا ہے، اس لیے ہمارے قائدین اس کا اظہار کرتے ہیں اور بجائے اظہار کرتے ہیں کہ اس کی شدت جب محسوس ہوتی ہے تو اس کو وہ بھی ظاہر کرتے ہیں. البتہ چونکہ یہ ایک عملی کام ہے اور عملی کام بھی ایک مسلسل جد و جہد کا کام ہے، اچانک وجود میں آنے والا کام نہیں ہے. یعنی صرف آپ وسائل کو اکٹھا کر لیں اور بہت بڑا میڈیا ہاؤس بنا لیں تب بھی میڈیا سکسیز نہیں ہوگا، وجود میں نہیں آئے گا. کئی لوازمات ہیں اس کے جو مرحلہ وار ہیں. وہ چونکہ مرحلہ وار کام وقت چاہتا ہے اور ضرورت کا احساس اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس کا اظہار کرتے ہوئے یہ محسوس ہوتا ہے کہ فوراً اس کو کر دیا جائے، اور فوری ممکن نہیں ہوتا ہے، اس لیے خاموشی ہو جاتی ہے اور رزلٹ نہیں آ پاتا ہے. جس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے، تمام مسائل کا حل مسلم میڈیا ہے، کیا واقعتاً ایسا ہے یا اس میں مبالغہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. تمام مسائل کا حل مسلم میڈیا نہیں ہے. میڈیا ہی کے ذریعے صرف مسائل نہیں حل ہوتے ہیں، میڈیا ایک پارٹ ہے. اسی طرح کمیونیکیشن کا، بات کو کہنے کا، بات کو سمجھانے کا، جیسے کہ کوئی شخص 1 to 1 یا اور بھی ایک، اس کو مانے تو صحیح معنوں میں معاشرے میں ایک جو سوشل سسٹم ہے، سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، بہت سارے سمجھنے سمجھانے کے دائرے ہیں، ان کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا ایک بہترین ذریعہ. لیکن اگر وہ ادارے ہی نہیں ہوں گے، افراد ہی نہیں ہوں گے، کام ہی نہیں ہوگا تو میڈیا کے ذریعے آپ حاصل کیا کر پائیں گے؟ تو میڈیا ہوا میں نہیں کام کرتا ہے، میڈیا ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے. یہ مؤثر اس وقت ہوگا جب قوم میں میڈیا کے ذریعے جن چیزوں کو پہنچانا مقصود ہے وہ چیزیں پائی جائیں گی. تو اس لیے میڈیا بہت اہم ہے، لیکن میڈیا ہی سارے مسائل کا حل نہیں ہے. یہ ہم کو اور آپ کو ذہنوں سے نکال دینا چاہیے. میڈیا بہت اہم ہے لیکن صرف میڈیا سے مسائل حل نہیں ہوں گے، دیگر چیزوں پر بھی آپ کو توجہ دینی پڑے گی، اس کی اہمیت کو بھی محسوس کرنا پڑے گا. ورنہ جب بھی میڈیا پہ بات ہوتی ہے تو مسلم میڈیا کی بات ہوتی ہے. حالانکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان کی تاریخ کو جانتے ہیں، تو جو مسلم کا ٹیگ لگتا ہے اس سے کیا لگتا ہے کہ جو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ ہو سکے گا یا نہیں ہوگا؟ اصل مسلم
का टैग इसलिए लग जाता है कि आम तौर पर हम गुफ्तगू में अपने मुसलमानों को ये महसूस कराते हैं कि हम आपकी भलाई चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमान एक कौम है, बहैसियत कौम उन्हें ज़रूरत है मीडिया की, बहैसियत कौम उनके मसाइल हैं, उन मसाइल को पेश करने, उनका हल पेश करने, उनकी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। ये मुसलमानों की ज़रूरत है, ना कि मुसलमान मीडिया ज़रूरत है। फ़र्क इसको समझना चाहिए। मुस्लिम कौम की ज़रूरत है मीडिया, मुसलमान मीडिया कोई चीज़ नहीं है। मुसलमानों को मीडिया में आने की ज़रूरत है, मीडिया को मुसलमान टैग से काम करने की ज़रूरत नहीं है। असल होता क्या है कि हम जल्दबाजी में इस बात को कह जाते हैं कि आम लोग समझ लें कि हाँ गोया मुस्लिम मीडिया मुसलमान मीडिया होगा तो मुसलमानों के लिए ही काम करेगा, जबकि ऐसा नहीं है। जो आदमी इश्यूज़ को सही तौर पर उठाकर काम करेगा वो दरअसल मुसलमानों के लिए काम करेगा। मुसलमान भी हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी कौम है और उनके अपने मसाइल हैं, उनकी अपनी बहुत सारी पेचीदगियां हैं, उनकी अपनी आवाज़ होनी चाहिए। लेकिन अपनी आवाज़ का मतलब ये नहीं कि वो मुसलमान मीडिया उठाए, मीडिया होना चाहिए जो उनकी आवाज़ को उठाए और दीगर और भी उन आवाज़ों को उठाए जो आवाज़ें उठनी चाहिए। तो बल्कि सही मानों में अगर मुस्लिम मीडिया के नाम पर ज़्यादा बात होगी तो वो मुफीद होने के बजाय कुछ ना कुछ नुकसानदेह बनेगी। क्यों? इसलिए कि वो फिर एक तरफा हो जाएगी। उसको सुनने वाले और उसको अहमियत देने वाले वो वही लोग होंगे जिनकी वो आवाज़ होगी। ज़रूरत यह है कि आवाज़ बने सबकी, और सबकी आवाज़ बनने का मतलब यह है कि वो एक मीडिया हो, जो मीडिया उसमें काम करने वाले बड़े पैमाने पर सही चीज़ को पेश करने वाले हो। हाँ, मुसलमान को बहैसियत कौम ये बात महसूस करनी चाहिए कि मीडिया में भी उनका रोल अदा होना चाहिए। मीडिया में मुसलमान बहुत कम है तो उन्हें इस काम को करने के लिए आगे आना चाहिए। मुस्लिम मीडिया बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने कौम को इस बात के लिए हम तैयार करें कि अगर हमारा हिंदुस्तान में रेशियो 30% का है तो कम से कम हम 40% मीडिया में काम करने वाले हों, तब जाकर के हम हक अदा करने वाले हैं और कौम का और मुल्क की खिदमत करने वाले हैं। अगर हम थोड़ी माजी की बात करें तो कई दहाई पहले अंग्रेजी रोजनामा की आवाज़ उठी थी। रोजनामा बहुत अहम चीज़ है, लेकिन ये अगर सहाफत की बात करें तो उस ज़माने में टॉप की चीज़ थी। आज बात आ रही है तो चैनल की बात आ रही है। ये भी चैनल एक टॉप की चीज़ है, आसान चीज़ नहीं है। तो जब भी इस तरह की बात होती है तो हम जो तसव्वुर होता है कि अच्छा होना चाहिए, लेकिन हम टॉप की बात करते हैं और हम ज़मीन से फिर कट जाते हैं और वो हवा में मुअल्लक़ रह जाती है हमारी बात और हमारी कोशिश। तो क्या ये जो तरीका है कि एक ही बार चैनल की बात करते हैं, हालांकि अगर हम और हमारे कायदीन संजीदा हो तो उस सिलसिले के जो छोटे पार्ट हैं जिसको आसानी से शुरू किए जा सकते हैं और जिसके बड़े मुनाफे हैं, इस वक्त बड़ा रीच है उनका, उसको शुरू किया जा सकता है और चलाया जा सकता है, फिर आगे बढ़ के हम चैनल तक पहुंच सकते हैं। इस तरह की कोशिश रूट वे में क्यों नहीं होती? सही मानों में इससे पहले बात हुई है और वो नाकाम रही है, यानी वजूद में नहीं आ पाया। रोज़नामा इंग्लिश अखबार और बहुत दिनों तक उसकी बात होती रही। आज इसी तरह चैनल्स की बात है। हकीकी मानों में काम तदरीजी ही होता है और काम करने वालों को भी सब्र करना पड़ता है। आप काम करने वाले हैं तब भी आपको सब्र करना पड़ेगा। बग़ैर सब्र के अगर आप नतीजा चाहेंगे तो नतीजा ये होगा कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि जब आप एक टॉप लेवल की बात करेंगे तो आपको उतने ही इंतजाम करने होंगे, उतनी ही तैयारी करनी होगी और उससे फिर आप थक जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हकीकी मानों में हमें चाहिए कि हम जो एक इब्तिदाई मरहला है मीडिया का, हालांकि वो मुअस्सिर है, ज़रूरत है, उस पर पहले कदम रखें, उस फील्ड में आएँ और उसमें इतना अपना दायरा बड़ा कर लें कि उसी से सलाहियतें उभरते उभरते आगे आए। हाँ, हमारा जहन होना चाहिए आगे सोचने का, हमारा जहन होना चाहिए टॉप मीडिया को कायम करने का, लेकिन ये जहन होने से नहीं काम चलेगा, कहने से काम नहीं चलेगा। नेचुरल वे में ही हम वहाँ तक पहुँच सकेंगे। हाँ, अगर हमारे सामने ही नहीं होगा तो कभी नहीं पहुँचेंगे। तो हमें चाहिए कि शुरुआत हम करें आज के सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, उस मीडिया से जो आसानी आप कर सकते हैं। आप इसे करने के बाद आप छोटे छोटे इस तरह के अफराद, यूनिट्स, तजर्बे हासिल कर लेंगे। आप एक
फील्ड में अपनी एक पहचान बना लेंगे और धीरे धीरे इसके ज़रिए आपका जहन होना चाहिए कि टॉप मीडिया वो तो इंशाल्लाह ज़रूरत है, ज़रूरत ईजाद की माँ है। आपका जहन होगा और नीचे से आपकी तैयारी होगी तो इंशाल्लाह वो भी एक दिन हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा। उन्होंने एक चीज़ और जो यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी है, बात आती रहती है तंजीमों की तरफ से भी और आम शख्सियात की तरफ से भी कि मीडिया होना चाहिए, पहली बात। दूसरी तरफ बहुत सारे वो नौजवान जो अपनी महदूद सलाहियत, महदूद सोच के साथ मीडिया के लिए काम कर रहे हैं और उन्होंने कुछ न कुछ काम करके दिखाया है, वो परेशानी से दो चार होते हैं। एक तरफ ज़रूरत का एहसास है, दूसरी तरफ जो लोग कर रहे हैं वो परेशान हाल हैं। तो जो लोग चाहते हैं कि हो, तो ऐसा क्या नहीं हो सकता है कि इस तरह के एनजीओज, इस तरह की शख्सियात जो छोटे छोटे यूनिट में काम हो रहे हैं उनको सपोर्ट करें और उनको ऊपर उठाने की कोशिश करें। हो सकता है उन्हीं में से कोई आइंदा चल के एक मेन स्ट्रीम मीडिया की शक्ल इख्तियार कर सकता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? यकीनी तौर पर जो अफराद इस मैदान में काम कर रहे हैं और अल्लाह ने उनको नेचुरल सलाहियत दी है इसलिए काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बाकायदा कैरियर अभी नहीं बन सका है मुस्लिम कौम में या हमारी अपने दायरे में ये कैरियर नहीं बन सका है। कैरियर नहीं है तो इसका मतलब कि लोग अपने ज़ौक़ से, अपनी अल्लाह तबारक तआला की तौफीक से और सलाहियत जो अल्लाह ने दी है उसकी बुनियाद पर काम कर रहे हैं। तो यकीनन उनका डेवलपमेंट आगे करना ये ज़रूरी है, लेकिन उसकी शक्ल ये असल मुश्किल है। क्यों? इसलिए कि जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें सपोर्ट कैसे किया जाए। मिल्लत को चाहिए कि इस सिलसिले में कोई एक उमूमी दायरा बनाए, उमूमी उसूल बनाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम करे कि जिसमें लोगों को आकर अपनी सलाहियत को बढ़ाने का मौका मिले। क्योंकि ऐसे आप किसको ढूंढेंगे, किस पर भरोसा करेंगे, कौन आपसे जुड़ेगा, आपसे कौन बंधेगा, ये सारी मुश्किलात आएंगी। इसका हल ये है कि वो लोग जो मिल्लत की नुमाइंदा तंजीमें हैं, मिल्लत की नुमाइंदा शख्सियात हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको इस मकाम पर रखा है कि उनके पास एक प्लेटफॉर्म है। वो अपने प्लेटफॉर्म को पहले उमूम दें, पहले रीचेबल बनाए, लोग वहाँ तक पहुँच सकें और फिर उसमें से जो सलाहियतें उनको लगें कि ये सलाहियतें आगे बढ़ सकती हैं उन सलाहियतों को आगे बढ़ाएं। यकीनन ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। अगर मिल्लत के अंदर मीडिया से जुड़े हुए अफराद की सलाहियतों को बढ़ा दिया जाए तो ये मिल्लत के लिए बहुत मुफीद होगा और आइंदा मीडिया में काम करने के लिए बेहतरीन वसाइल आपको फराहम हो जाएंगे, अफराद फराहम हो जाएंगे। अफराद के बगैर न आप मीडिया कायम कर सकेंगे, न मीडिया चैनल कायम कर सकेंगे, न इस मैदान में आप कोई बेहतर नतीजा पा सकेंगे। एक और आखिरी सवाल कि जो इस तरह के छोटे छोटे यूनिट्स हैं, बल्कि हम उसको छोटा सा एक मीडिया हाउस कह सकते हैं, इस तरह के बहुत से नाम हैं हिंदुस्तान में जिन्होंने अपनी कोशिश पेश की है। तो इस हवाले से जो आम लोग हैं, आम मुसलमान हैं और बाशऊर तबका है, उनकी जिम्मेदारी क्या है, किस तरह उनको सपोर्ट करना चाहिए अगर वो मीडिया के लिए जरा बराबर भी संजीदा हैं, तो क्या कहेंगे? इसमें कोई शक नहीं कि मिली सपोर्ट ज़रूरी है। मिल्लत ने जिस तरह मदारिस को, दीनी इदारों को, तंजीमों को अपना सपोर्ट दिया कि आज इस भारत में, इस मुल्क में मुसलमान अपने तौर पर बड़े बड़े इदारे, बड़ी तंजीमें अल्हम्दुलिल्लाह चलाते हैं और अच्छे पैमाने पर उनका स्ट्रक्चर है, उनका सिस्टम है, उनकी सारी चीज़ें हैं और ये सब की सब इंडिपेंडेंट अपने ऊपर है, यानी मिल्लत के ऊपर है। इसी तरह मीडिया की आज ज़रूरत का एहसास है, तो मीडिया में काम करने वाले जो छोटे छोटे इदारे हैं, अभी छोटे ही इदारे हैं, लेकिन उन्हें सपोर्ट करना ये मिल्लत की जिम्मेदारी है। तय बात है मिल्लत उमूमी तौर पर इनको सपोर्ट नहीं कर पाएगी। मिल्लत का जो बाशऊर तबका है, जो समझता है सारी चीज़ों को और जिसे अल्लाह ने साहिब खैर बनाया है, जो मदद भी कर सकता है, उसे चाहिए कि वो मुंतखब करे, वो देखे कि उसके करीब कौन सा ऐसा मीडिया है या कौन से ऐसे लोग हैं जिन तक वो पहुंच सकता है और जिनसे वो अटैच रह सकता है, जुड़ सकता है और जिनके साथ वो एक निगरानी का काम कर सकता है। ऐसे लोगों से जुड़ें लोग और उनको सपोर्ट करें, क्योंकि इसका जो सपोर्ट है ये वन टाइम है। यानी अगर एक मरतबा आप एक मीडिया सिस्टम को खड़ा कर देंगे तो वो आपको कई सालों तक काम करके देगा और मजबूत से मजबूत तर होता जाएगा। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट जो है ये एक बड़ा सदका जारिया है, ये सदका जारिया का अमल है। क्योंकि मौजूदा हालात में मसलन बड़े बड़े जलसे हमारे मिली सतह पर होते थे, आगे भी होने के बहुत सारे इम्कानात हैं, अभी रुके हुए।
ایک ایک جلسوں کا جو خرچ ہے آپ یہ مان کے چلیے کہ اس سے جو آپ ہزاروں لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، اس میڈیا ہاؤس کے ذریعے چھوٹے چھوٹے یونٹس کے ذریعے آپ لاکھوں لوگوں تک، ہزاروں لوگوں تک، سینکڑوں لوگوں تک وہی واعظ و نصیحت کی باتیں مؤثر انداز میں اور بار بار پہنچا سکتے ہیں۔ یہ گویا کہ ان جلسوں کی طرح بہت مفید ہیں، اور کہیں کہیں ان سے زیادہ ان کی ریچ ہے۔ ان کی اپنی اہمیت تھی، ان کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ تو ہماری ملت کو چاہیے کہ کم از کم اس طرح کی چیزوں کا سپورٹ کریں اور اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر کریں، اور ان سے اپنا رشتہ بھی رکھیں، ان کو سنیں بھی، ان کو اہمیت دیں۔ اور آج ڈیجیٹل ہمیں سیکھنے کا مزاج بنانا چاہیے۔ یہ جو ابھی لاک ڈاؤن کا زمانہ گزرا ہے اور جو کہا جا رہا ہے کہ شاید کووڈ-19 کے ساتھ ہم کو آگے جینا پڑے گا، ہم کو مزاج بنانا پڑے گا کہ ہم جئیں گے، تو کتنا زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے، اور آپ نے اس کا فائدہ اٹھایا ہوگا کہ اس زمانے میں جن لوگوں نے سوشل میڈیا سے فائدہ اٹھایا، اس سے مفید چیزوں کو سنا، اپنی تربیت کی، اچھا علم حاصل کیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر اس اعتبار سے متوجہ ہوں، اس کی مدد بھی کریں، اس سے فائدہ بھی اٹھائیں اور لوگوں میں اس کو عام بھی کریں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا خاص پروگرام حالات حاضرہ، اور آج ہمارے ساتھ خاص مہمان تھے مولانا مصطفیٰ ندوی مدنی صاحب۔ ہم نے جو بات کی وہ انتہائی اہم بات تھی۔ امید ہے کہ جو ہمارا باشعور طبقہ ہے وہ ان باتوں پر توجہ دے گا۔ اگر ہمارا پروگرام آپ کو اچھا لگے تو ضرور لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور دوسروں تک پہنچائیے۔ بہت